आज का ध्यान शुरू करने से पहले मुझे लगा कि जैसे सुबह प्रश्न थे, कल शाम को भी प्रश्न थे, थोड़ा सा हम एक बार फिर से बेसिक्स एनालाइज समझ लेते हैं क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न, 3 प्रश्न चैट में डाल देता हूँ। तो आई लाइक यू टू काइंडली रिफ्लेक्ट ऑन देम एंड शेयर योर आंसर्स टू देम। पहला प्रश्न है, what are these dhatus? What is Pathvi Dhatu, Vayu Dhatu? These two we have studied. And third is naturally कि हम ये कर क्यों रहे हैं, इतना मुसीबत क्यों मोल ले रहे हैं, अपनी एक एक धातु को देख रहे हैं, अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं. So they are all related questions. So but I think ये हमें क्लियर होगा तो then we'll be more motivated to practice. माइक अपना सर जी माइक को क्लोज हो जाए. अच्छा जी. तो मैं चाहूंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर आप दें, एक एक करके सभी दें या कुछ लोग दें, ताकि हम इस बेसिक चीज को समझ जाएं कि हम ये क्यों कर रहे हैं और ये है क्या. तो मैंने कोशिश तो की है अभी तक कई बार इसको उत्तर देने की, समझाने की, बट स्टिल मे और मे नॉट बी क्लियर. तो इसलिए मैं जस्ट टू मेक इट क्लियर एंड श्योर दैट हम लोग जो साधना कर रहे हैं वो हमें ठीक से समझ में आ रही है, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं. और इनके बाद फिर हम देन वील टेक अप द प्रैक्टिस इटसेल्फ. अगर कोई उत्तर देना चाहे तो देन प्लीज. यस दीपक जी, बिल्कुल ब्रीफली काइंडली. हाँ, ब्रीफली, क्वाइट ब्रीफली. पहला तो सवाल ये है कि हम क्यों कर रहे हैं. इस एक्सरसाइज से हमें अत्ता भाव हमें पता लगेगा कि शरीर में कोई सॉलिडिटी नहीं है, ये सब धातुओं से बना हुआ है. और इससे हमारा अत्ता भाव कमजोर होने में हमें मदद मिलेगी. पृथ्वी धातु जो शरीर के अंदर भारी पर हल्कापन, स्मूथनेस, कोर्सनेस, हैवीनेस, लाइटनेस जो फील होती है, उसको हमने नाम दिया पृथ्वी धातु. और जो हलन चलन होती है या अगर हम गिरे तो हमें ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम हमें सपोर्ट करता है, या जो मूवमेंट्स हैं वो सारे वायु धातु की कैटेगरी में हम उसको दे देते हैं. ठीक, ब्रीफली मेरा ये आंसर है. थैंक यू. Payal, you want to add something to them? Basically धातु का basically to understand that we have no ownership over it. So since we have no ownership, it's a natural phenomena which occurs once. So hence the anatta is. Rest all he said the properties and then we same repeat. Yeah. Could anybody be more specific? Because धातुओं से एक डायमेंशन प्रकट समझ आएगी ना. रूप का, because we are addressing रूप right now, इसलिए हमने रूप की जो properties, what makes up the रूप, मैटर को हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वर्ल्ड पूरे यूनिवर्सल मैटर ही is made up of those 4 dhatus. So we are understanding we are part of nature. We are also composed of the same dhatus. Anybody else would like to add anything? कोई और उसमें? Yeah, sir. We are trying to understand the रूप खंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसे अलग अलग माध्यम से देख रहे हैं to break the दृष्टिकोण, सक्काय दिट्ठी, so that we understand that we don't have much control and we don't own, we are part of nature. And it's not much difference. There is an interconnectedness, not much difference between us and the external things. बाकी का तो पायल और दीपक जी ने समझा दिया है. And properties, we are understanding the properties of earth element, the qualities, and vayu dhatu. Basically, because of the expansion and contraction, there is a movement which is happening in our body, which is vayu dhatu. Okay. Thank you.
Why are we not trying to understand what actually the body is? Is body composed of these, or is this why are we interested in properties and not सामान्य तो रूप से कहा जाता है ना कि ये वस्तु है, इसका वजन इतना है, इतनी लंबी है, चौड़ी. We are not studying that, na? Why are we studying in this manner? To deform Ownership के लिए, Dharsa, to understand we have no ownership over it. Yeah, but people may say you have no ownership over solidity and movement. Yeah, that's true. But after all, there is some mass in it. No? It has some weight. That weight is the positive thing. But it's not not in our control. विज्ञान से अगर हम समझें बात को, so there is a objective reality called it. It is changing, yeah. But still, I can see this is my body which is changing with time. But there's no control. Yeah, that's okay. So why are we saying body is equivalent to पृथ्वी धातु वायु धातु? Probably question मैंने ठीक से नहीं बोली. हम ये क्यों कह रहे हैं कि पृथ्वी धातु वायु धातु ये सब properties कह रहे हैं ना? So why are we defining body in terms of properties? Because that is how the entire universe is composed. Universe is composed of properties or things? That is how we are understanding matter. That is how we are understanding it. Because it's the properties, it's not actually earth. बाहर की मिट्टी उठ के वो नहीं हो रही. It is the properties, similar properties to what is outside externally. वो ही properties हैं. See, जब हमारे टीचर हमको कहते हैं कि बॉडी कंटेम्पलेशन करो भाई, वो बहुत जरूरी है, बॉडी कंटेम्पलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, then does it mean contemplation of these dhatus or contemplation of the body as a whole? We're trying to experience these elements through. Basically, we want to get a feel for the experience of these elements. And those experiences are basically solidity, movement, and these have been given the names of these dhatus. So really it is understanding in terms of what our experience consists of as a root. Root में हम क्या experience करते हैं? Yeah. See, the whole teaching of Buddha is about experience. हम रूप का experience कैसे करते हैं? बाकी चीजें तो वेदना वगैरह तो कभी वेदना तो डायरेक्टली एक्सपीरियंस ही है. संज्ञा का अनुभव एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? संखार का एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? विज्ञान का एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? क्योंकि दुख जो है वो एक्सपीरियंस के मिसअंडरस्टैंडिंग से आता है. कोई बाहर की चीज हमें दुख नहीं दे सकती. कोई कार या कोई आवाज या कोई गंध या कोई खाने की चीज हमको दुख नहीं दे सकती. बट जब हम उसको अनुभव करते हैं और उस अनुभव के प्रति राग द्वेष जागता है, चीज के प्रति नहीं जागता, अनुभव के प्रति जागता है. जब हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, तो इसका क्या तात्पर्य है कि मैं इस शरीर को एक सॉलिड एंटिटी मान रहा हूं और इसके ऑब्जेक्टिव रियलिटी को मान रहा हूं. जबकि वास्तव में जब मैं शरीर के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो मैं अनुभव करता हूं भारीपन, हल्कापन, गर्मी, सर्दी, मूवमेंट या लैक ऑफ मूवमेंट, cohesion or flow. These are my experiences. So the way when we say body contemplation, it means understanding how we experience the body, and then not getting carried away by them, and by understanding the nature of that experience. So शरीर को जो हम अनुभव करते हैं वो इसी इन 12 गुणों में करते हैं जो मैंने गिनाए थे. 6 गुण हमने पृथ्वी धातु के गुने और 2 गुण बाकी सभी धातुओं के. तो इन 12 गुणों के माध्यम से ही, इन 12 एक्सपीरियंसेस के माध्यम से ही हम शरीर को एक्सपीरियंस करते हैं. तो अब उन एक्सपीरियंसेस की प्रति उसकी वास्तविकता को समझना, उसके स्वभाव को समझना, अनित्य स्वभाव को समझना और
उसके ऊपर जैसे आप लोगों ने कहा कंट्रोल करना होना उसको समझना। सो दैट इज द होल प्रॉब्लम। सो व्हेन वी से 5 खंडों को हमको समझना है तो पहला खंड है रूप। तो रूप खंड को हम समझ रहे हैं। आपको याद होगा सत्य हमने सूत्र पढ़े थे, उसमें कहा था इति रूपम, यह रूप है। या दूसरे एक और सूत्र में 798 में कहा था रूपं पजानाति, रूप को जानता है। फिर उससे पूछ कैसे जानता है कि रूप के अंदर चत्तारो महाभूतानंग, महाभूतानां उपादाय रूपम इति उच्यते रूपम। तो जो 4 महाभूत हैं जिनको हम धातु कह रहे हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ये 4 महाभूत ही हमारे अनुभव में आते हैं। शरीर की ऑब्जेक्टिव रियलिटी हमारे अनुभव में नहीं आती। किसी भी संसार का भी भगवान ने जब कहा संसार क्या है, इनफैक्ट सूत्र कॉल्ड ऑल, सब कुछ क्या है, वो कहते हैं 6 इंद्रियां, यही सब कुछ है। तो हम उस भगवान की शिक्षा के अनुरूप साधना कर रहे हैं, तो हमको ये क्लियर हो, क्योंकि कई बार ये वी लूज साइट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। दैट्स व्हाई आई थॉट आई reassert, and I'm happy I've answered most of the stuff has been answered, so it's therefore the time for us to practice. So today we'll try to conclude the vayu dhatu. तो पहले थोड़ी देर आनापान कर लेते हैं, calm down the mind, then we'll practice vayu dhatu, then we'll practice prithvi dhatu, then we'll practice vayu dhatu, and see कि हम इस शरीर में दोनों धातुओं को देख सकते हैं by looking at the that particular property. We make intention to look at that property. वो है क्या? Then we find out कि है. Then we look at another property. ये भी है क्या? Then we find out हाँ ये भी है. So that's how we'll practice today. Okay. So we can. I don't need to give any more instructions. We know how to do practice. So पहले थोड़ी देर मन को शांत कर लेते हैं आनापान का सब अभ्यास करके, या चाहें तो अगर मन ज्यादा एकाग्र नहीं है तो यहीं पे फोकस कर ले। अगर मन एकाग्र है, शांत है, then you can feel the सब्बकाय पटिसंवेदी अस्स्य सामीति सख्यते। जैसा भी इसको आपको इस समय ठीक लगे वैसा साधना करके चित्त को थोड़ा एकाग्र कर दें, तो फिर हम एक एक करके बाकी धातुओं का अनुभव करने का प्रयास करेंगे। सर अभी जो कंटेम्पलेट करना है वो पृथ्वी धातु और वायु धातु दोनों पर करना है ना? आपके साथ हम आनापान करते हैं थोड़ी देर, then I'll give brief instruction and then we'll
अब हम वायु धातु को अनुभव करने का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर। सहज स्वाभाविक सांस आ रहा है, पहले पार्ट बाय पार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सिर में देखते हैं कि जैसे सांस आ रहा है वहां पे कुछ हो रहा है क्या, क्या कोई वहां भी फैलाव हो रहा है सांस के आने से और फिर वो वापस आ जाता है सांस के बाहर जाने से। और वहां देख के फिर हम चेस्ट और बेली में वो काफी अनुभव को कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो सहज ही होना चाहिए। सांस के आने पे चेस्ट और बेली एक्सपैंड होते हैं और फिर अपनी जगह वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर वो भी अनुभव करके देखते हैं फिर से। जो फैलाव हो रहा है या यूं कहें कि हमारे बॉडी के जो कवर है उनको थोड़ा सा पुश किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द वायु धातु। पांच सांस देख के फिर हम अगली बात करते हैं कि सांस को देख रहे हैं, इसके एक्सपेंशन को जान रहे हैं और हाथों पे भी ध्यान देते हैं, बाहों पे ध्यान देते हैं। देखेंगे कि बहुत सटल सा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वहां पे भी हो रहा है। बाहों में अनुभव करने के बाद शिफ्ट our attention to the legs, the thigh और टांगे अपने पाँव के टखनों तक, पाँव के उंगलियों तक, synchronizing it with the breath going in, coming out.
लगता है कि पूरी टांग में ना महसूस हो, थोड़ी सी जगह पे हो, उसका पूरे हाथ में ना हो, आधे ही हाथ में हो, तो अभ्यास की बात है। जितना अभ्यास करते जाएंगे धीरे धीरे सारे शरीर में वायु धातु की जो उपस्थिति है वो हमारे अनुभव में आ जाती है। थोड़ी देर और करते हैं, पार्ट बाय पार्ट। एक बार सारे शरीर को एक बार देख लेते हैं ताकि सारे शरीर में भी इकट्ठा अनुभव हो जाए। अब हम पृथ्वी धातु का अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। पहले पार्ट बाय पार्ट। पृथ्वी धातु का मतलब सेंस ऑफ सॉलिडिटी, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, हैवीनेस, लाइटनेस, smoothness, roughness. We start on top of the head and see कि वहाँ पे solidity भी है एकदम। And then we can systematically slowly scan down the body and note कि सब जगह solidity भी अनुभव होती है।
पूरी संभावना है कि जब पृथ्वी धातु का अनुभव कर रहे हैं और हम ऐसे स्थान पे आते हैं जहाँ पे ग्रॉस मूवमेंट हो रही है, जैसे चेस्ट में या बेली में, तो आपको दोनों अनुभव होते होंगे कि हाँ ये सॉलिड भी है लेकिन मूवमेंट भी हो रही है। तो आप दोनों धातुओं की साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस को भी जान सकते हैं। अपनी जगह पे क्योंकि वायु धातु की मूवमेंट सटल है तो मालूम पड़ भी सकती है, नहीं भी मालूम पड़ सकती, बट इस एरिया में जनरली सामान्यतः मालूम पड़ जाता है। आठवें पार्ट करने के बाद थोड़े कुछ समय के लिए हम सारे शरीर को भी देख सकते हैं और उसमें पृथ्वी धातु को देख सकते हैं। अगर साथ साथ वो भी मालूम पड़ती है हरण चरण, उसको भी जान सकते हैं। जब हमने थोड़ी देर देख लिया, then we can again start noticing the वायु धातु in the body. फिर अगर पार्ट बाय पार्ट करते हुए we focus again on the movements.